Good morning, students. Welcome to the science class. Today we are going to start our new chapter, that is force and pressure. This is actually the chapter 11 of your syllabus, and it is our fifth chapter. According to the sequence, it is our fifth chapter, but in syllabus it is your 11th chapter. Okay, so according to the split up syllabus, we have to complete this chapter first. So we are taking this chapter, that is force and pressure. Okay, now force and pressure, this is a chapter from the physics part of science. In this chapter we will study about two things: first force, and then after that pressure. Now first of all, force. We all are familiar about force. हम सभी को पता है force क्या होता है. Okay, and we know that in our daily life we used to move object with the help of force. Okay, we know that there are various types of actions which are taking place around us. Okay, and various types of changes we can see in that particular type of action, such as when we move a ball rolling on the ground, that it moves for some time and that it rolls down. Sometimes it may be change in the direction of the motion of the object. It is also possible that the ball may slow down, may also changes it also changes its direction. So there are various types of effects of force we can observe in our daily life. So various types of actions, in each and every action there is a type of force. Okay, now so what is force? Now force is the push or pull of an object. So the push or pull of an object is called force. Now if an object has to be moved, it has to be pushed or pulled. अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को मूव करना है, हमें उसे पुश करना पड़ेगा या उसको पुल करना पड़ेगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल देर आर वेरियस इन दीज पिक्चर्स द वेरियस टास्क आर गिवन, and in each and every case force is applied. In some cases it is the pushing of the object, and in some cases it is the pulling of an object. Such as फर्स्ट केस में जो कार है उसको धकेला जा रहा है तो पुश किया जा रहा है. सेकंड में आप देख रहे हो, सेकंड पिक्चर में यहाँ पर पुल किया जा रहा है. इसमें भी बॉल को दूर किया जा रहा है, दैट इज़ पुशिंग की जा रही है. यहाँ भी क्या हो रहा है, यहाँ पुल किया जा रहा है, दैट इज़ यहाँ पे दूर किया जा रहा है, पुश किया जा रहा है, यहाँ पर पुल. लास्ट पिक्चर में आप देख रहे हो टग ऑफ वार वाले गेम में जो बच्चे जो हैं ये पुल कर रहे हैं. तो इन ईच एंड एवरी केस देयर में बी पुश और पुल. कहीं पर पुल हो रहा है, कहीं पर पुश हो रहा है. हालांकि और कई तरह के एक्शंस होते हैं जो पुश एंड पुल में यूज़ में आते हैं, फोर्स में यूज़ में आते हैं, जैसे पिकिंग, ओपनिंग, शटिंग, किकिंग, हिटिंग, लिफ्टिंग, फ्लिकिंग. ओके, तो ये इन सब में कहीं ना कहीं जो है ये टास्क जहाँ भी ये जो टास्क है इनमें कहीं ना कहीं पुल या पुश जो है हाइड रहता है. इनमें कहीं ना कहीं या तो पुश हो रहा है या पुल हो रहा होता है. सो वी कैन से अ पुल और अ पुश on an object is called a force. Okay, forces are due to interaction. Forces किस तरह से arise होते हैं? इंटरेक्शन के कारण. If there is an interaction between two objects, there is a force. Without interaction there is no force. Okay, an interaction of an object on another object result in a force between two objects. अगर एक ऑब्जेक्ट का दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ इंट्रैक्शन हो रहा है तो उनके बीच में फोर्स डेवलप होता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ए मैन स्टैंड्स बिहाइंड ए कार, द कार डज नॉट मूव. इफ़ ही pushes the car, he applies force and the car begins to move in the direction of the applied force. ये आदमी जो कार के पीछे केवल खड़ा हो जाएगा, केवल खड़े होने से फोर्स नहीं लगेगा, कार मूव नहीं करेगी. इसके लिए क्या करना पड़ेगा? मैन हैज़ टू अप्लाइड फोर्स बाय पुशिंग द कार. पुश करना पड़ेगा कार को. ओके, और तब जाके फोर्स अप्लाई होगा और कार जो है मूव करना शुरू कर देगी. सो इंट्रैक्शन हुआ, मैन के हैंड और कार की बॉडी के बीच में इंट्रैक्शन हुआ, तब जाके फोर्स डेवलप हुआ. तो फोर्सेस जो है वो इंट्रैक्शन के कारण डेवलप होते हैं. ओके, इंट्रैक्शन के कारण डेवलप होते हैं. मोस्टली फोर्स अराइजेज ड्यू टू इंट्रैक्शन बिटवीन, we can say in games there is also interaction.
Okay, in cricket there is an interaction between the hands and the bat, so that there may be a shot. Okay, so we can say interaction is forces arises due to interaction से force arise होते हैं. Okay, so at least two objects must interact for a force to come into play. Thus an interaction of an object with another object result in a force between two objects. Okay, नाउ एक्सप्लोरिंग फोर्सेस कैसे कैसे फोर्स हो सकते हैं, कैसे हम कह सकते हैं कि फोर्स कब आपस में जुड़ते हैं और कब वो आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं. सो नेचर ऑफ फोर्सेस जाना बहुत ज़रूरी है. सो फोर्सेस अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द सेम डायरेक्शन एड टू ईच अदर. ओके, नो इफ टू फोर्सेस एक्ट नाउ if two forces act on a body on the same direction in the same direction, the net force is the sum of the two forces. अगर किसी एक ऑब्जेक्ट पे एक ही दिशा में एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स कितना होगा, वो दो जितने फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं उन सबको हम आपस में जोड़ देंगे तो उस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स आ जाएगा. समझ लीजिए जैसे इस एग्जांपल में इस फिगर में दे रखा है, ये एक ऑब्जेक्ट है, बॉक्स है, इस पर दो फोर्स लग रहे हैं F1 एंड F2 और दोनों ये एरो ये बता रहा है कि दोनों ही इस डायरेक्शन में लग रहे हैं, एक ही दिशा में लग रहे हैं. ओके, तो इस बॉक्स पे नेट फोर्स कितना हो गया, टोटल फोर्स कितना हो गया, F1 प्लस F2 टोटल फोर्स हो गया. इन दोनों फोर्स को आपस में जोड़ दो तो वो आ जाएगा टोटल फोर्स F1 प्लस F2. मान लो F1 जो फोर्स है, फोर्स जो है उसकी SI यूनिट न्यूटन होती है. न्यूटन में इसको मेज़र किया जाता है. जैसे हम कहें किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है 10, तो 10 क्या, 10 न्यूटन, तो इसकी यूनिट हो गई न्यूटन. सो द SI यूनिट ऑफ फोर्स इज़ न्यूटन. समझ लो इस बॉक्स पे दो फोर्स लग रहे हैं, F1 फोर्स है 10 न्यूटन और F2 फोर्स है 15 न्यूटन. ओके, तो इस पे टोटल फोर्स कितना हो गया, 10 प्लस 15 इज इक्वल टू 10 और 15 कितना हो गया, दैट इज़ 25 न्यूटन. 25 न्यूटन टोटल फोर्स इस बॉक्स पे लग जाएगा. तो एक ही दिशा में लगने वाले फोर्स आपस में जुड़ जाते हैं. ओके, नाउ इफ़ टू फोर्सेस एक्ट ऑन ए बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शंस द नेट फोर्स इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू फोर्सेस. अगर किसी ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स लग रहे हैं और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, दो फोर्स लग रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट पे और अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो नेट फोर्स क्या होगा, उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा, उन दोनों फोर्स को आपस में डिफरेंस कर दो, आपस में उन दोनों फोर्सेस का डिफरेंस कर दो तो दैट इज़ द नेट फोर्स, वो नेट फोर्स हो जाएगा. समझ लो ये एक ऑब्जेक्ट है और इस पर एक फोर्स जो है इस दिशा में लग रहा है F1 फोर्स और दूसरा फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में इस दिशा में लग रहा है. तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा, इस ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा, F1 फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग रहा है, F2 फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो नेट फोर्स हो जाएगा F2 माइनस F1. जो ज़्यादा फोर्स है उसको कम फोर्स में से माइनस कर देंगे तो F2 माइनस F1 हो जाएगा. ओके, सो द इफेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट. ऑब्जेक्ट पे क्या इफेक्ट होगा ये डिपेंड करेगा कि उस पर नेट फोर्स कितना लगा. अगर दोनों ही डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स बराबर है, समझ लो F1 फोर्स भी 10 न्यूटन है और F2 फोर्स भी 10 न्यूटन है, F2 फोर्स भी 10 न्यूटन है, तो दोनों ही कितना हो जाएगा, 10 माइनस 10 0. इट मीन्स कोई भी फोर्स नहीं लगेगा उसमें, बॉक्स अपनी जगह से नहीं हिलेगा क्योंकि दोनों ही दिशाओं में लगने वाले फोर्स बराबर हैं. 10 माइनस 10 0 न्यूटन फोर्स उस पर हो जाएगा तो बॉक्स अपनी जगह से नहीं हिलेगा. ओके, तो एक ही दिशा में लगने वाले फोर्स आपस में जुड़ते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं. ओके, सो दिस इज़ अबाउट फोर्स. नाउ कोई भी फोर्स कितना स्ट्रॉन्ग है उसकी स्ट्रेंथ को हम किस में एक्सप्रेस करते हैं, उसके मैग्नीट्यूड से एक्सप्रेस करते हैं, उसके मैग्नीट्यूड से एक्सप्रेस करते हैं. वी ऑल्सो हैव टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट एक्ट. ओके, सो ऑल्सो इफ द डायरेक्शन और द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्सेस चेंजेस इट्स इफेक्ट ऑल्सो चेंजेस. कोई भी फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड तो इम्पॉर्टेंट है ही. मैग्नीट्यूड मतलब उसकी वैल्यू. जैसे हमने कहा इस पे एक ऑब्जेक्ट फोर्स लग रहा है, कितना लग रहा है 10, तो 10 न्यूटन जो है, 10 वैल्यू जो उसकी आई वो उसका मैग्नीट्यूड है. कितनी वैल्यू का फोर्स लग रहा है, क्या उसका वैल्यू है, वो मैग्नीट्यूड कहलाता है. तो फोर्स जो है
उसका मैग्नीट्यूड भी होता है और उसकी डायरेक्शन भी इम्पॉर्टेंट है, किस दिशा में फोर्स लग रहा है और क्या वैल्यू का फोर्स लग रहा है, बोथ आर इम्पॉर्टेंट। तो मैग्नीट्यूड मतलब उसकी वैल्यू, उसका मेज़र। ओके, सो फोर्स हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। फोर्स का मैग्नीट्यूड भी होता है, उसका डायरेक्शन भी होता है। नाउ द इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट। फोर्स के कारण एक ऑब्जेक्ट पे क्या क्या असर पड़ सकता है। किसी अगर ऑब्जेक्ट में फोर्स लग रहा है तो फोर्स के कारण एक ऑब्जेक्ट में क्या क्या बदलाव आ सकता है, क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं फोर्स के कारण। तो पहला, फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट टू मूव फ्रॉम रेस्ट। फोर्स के कारण कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट से मूवमेंट में आ सकता है। कोई ऑब्जेक्ट एक ही जगह पर है, अगर उसे फोर्स लगेगा तो वो मूवमेंट में आ जाएगा, उसमें मूवमेंट करना शुरू हो जाएगा, उसमें मूवमेंट आ जाएगा। सो फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट। तो रेस्ट से एक ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू कर सकता है। जैसे एक कार है, रेस्ट पर है, फोर्स लगेगा तो मूवमेंट हो जाएगा। तो दैट इज़ फोर्स कैन मेक एन ऑब्जेक्ट टू मूव फ्रॉम रेस्ट। दूसरा पॉइंट, फोर्स के कारण और क्या क्या हो सकता है। फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स के कारण एक मूविंग ऑब्जेक्ट पे अगर हम फोर्स लगाएं तो वो रुक भी सकती है। जैसे गोलकीपर एक मूविंग बॉल को अगर वो रोक रहा है फोर्स लगा कर, तो बॉल रुक जाएगी। तो फोर्स के कारण एक मूविंग बॉल रुक भी सकती है। क्रिकेटर बहुत तेज शॉट खेलते हैं और अचानक जो कैचर है बॉल को कैच कर लेगा तो क्या होगा, बॉल रुक जाएगी। तो मूविंग ऑब्जेक्ट को हम रोक भी सकते हैं फोर्स लगाने से। तो फोर्स का इफेक्ट, इट कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ़ इट इज़ मूविंग। फोर्स के कारण ऑब्जेक्ट की स्पीड भी चेंज हो सकती है ना। फोर्स के कारण ऑब्जेक्ट की स्पीड में भी चेंज हो सकता है कि फोर्स लग रहा है, पहले वो तेज़ स्पीड से था, फोर्स लगने से उसकी स्पीड कम हो गई। या हम ये कह सकते हैं फोर्स पहले वो धीमी स्पीड में था, फोर्स लगाया तेज़ स्पीड से जाने लगा। जैसे जैसे उसमें होता है, फुटबॉल के मैच में होता है, एक खिलाड़ी दूसरे जब बॉल को मारता है, दूसरा उसको पास ऑन करता है तब भी मूवमेंट में होती है, और दूसरा प्लेयर उसको और तेज़ी से किक करता है तो और तेज़ी से उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो कई बार स्पीड बढ़ भी सकती है, कई बार कम भी हो सकती है। इंक्रीज एंड डिक्रीज इन स्पीड कैन बी अब्जॉर्ब्ड बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ओके, तो स्पीड में चेंज आ सकता है। नाउ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स के कारण किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो सकता है। उसका मोशन, जो मूवमेंट का उसका डायरेक्शन है वो चेंज हो सकता है। यस, अगर कोई क्रिकेटर जब शॉट मारता है तेज़ी से तो किस दिशा में बॉल आ रही होती है, और जब वो जो तेज़ी से बॉल को किक करता है, तेज़ी से उसको मारता है, उसको शॉट करता है, तो फिर वो बॉल किसी और डायरेक्शन में जा सकती है। ओके, इसी तरह फुटबॉल, जो प्लेयर जो तेज़ी से किक करे तो उस फुटबॉल की डायरेक्शन चेंज हो सकती है, किसी और दिशा में फुटबॉल जा सकता है। सो वी कैन से एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स से किसी भी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है। फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स अप्लाई करने से किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज हो सकता है। यस, जब ब्लोइंग एयर इन ए बलून, जब बलून में एयर ब्लो करते हैं फोर्स लगता है एयर का, और बहुत ज़्यादा फोर्स हम अप्लाई करते रहते हैं तो बलून का शेप बढ़ता रहता है। और ज़्यादा अप्लाई करेंगे, एयर जितनी आनी चाहिए उससे ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो बलून फूट भी जाएगा। ओके, डिफ्लेट हो जाएगा। ब्रस्टिंग ऑफ बलून कैन टेक्स प्लेस। सो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कैन चेंज इट्स शेप, तो उसका शेप चेंज हो जाएगा। इसी तरह से डो, इट्स वी कैन से इन मेकिंग चपाती द डो शेप कैन चेंज। ओके, जो डो का शेप है वो चेंज हो जाता है इन मेकिंग ऑफ चपाती। तो दैट इज़ एप्लीकेशन, बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स द चेंज ऑफ द शेप ऑफ द डो कैन चेंज। तो इन दिस वे फोर्स कैन ब्रिंग अ चेंज इन द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्ट्रेचिंग ऑफ द रबर बैंड, जब हम रबर बैंड की स्ट्रेचिंग करते हैं तो क्या होता है, उसका शेप चेंज हो जाता है, उसका स्ट्रेच करने पे बड़ा हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, और जब हम उसको छोड़ते हैं पुरानी शेप में वो दोबारा आ जाता है। तो फोर्स अप्लाई करने से शेप भी चेंज हो सकता है। तो इन दिस वे स्टूडेंट्स, फोर्स में कॉज वन और मोर ऑफ दीज इफ़ेक्ट्स। फोर्स अप्लाई करने से, या हमने जो ऊपर इफ़ेक्ट्स पढ़े हैं इनमें से या तो एक इफ़ेक्ट्स हो सकता है, सम इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, या इनमें से सारे इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, वन या मोर देन वन इफ़ेक्ट्स भी हो सकता है इनमें से, और इनमें से सारे इफ़ेक्ट्स भी एट ए टाइम फोर्स अप्लाई करने पे हमें ऑब्जर्व हो सकते हैं। सो इन दिस वे फोर्स
may bring about all or some of these changes we have discussed. So, students, go through this topic, try to understand, try to clear your concept, try to understand the topic. Okay, students, thank you.